students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 6 English, that is adventure in Antarctica. How there is adventure in Antarctica? Let's read this lesson. Section 1. In this lesson, section 1 is Christmas Day. It was hot and sunny in Santiago, the capital of Chile in South America. Santiago was the capital of Chile. It was a hot and sunny. वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा hot था और sunny day था. It was a most unusual December for us. फिर एकदम unusual December आता है. Used as we were to cold Decembers in the northern hemisphere. Northern hemisphere में तो cold रहता था. We bounced out of our beds quickly. अब हम एकदम अपने bed से कूदते हैं. Wished each other Merry Christmas. हमने सबको Merry Christmas wish किया. And skipped down the stairs into the living room. अब हम stairs से उतरते हुए skip करते हुए कहाँ पे अब आए living room में आए अपने. There stood our tree. वहाँ पे क्या था हमारा tree था. Decorated with the bright buntings. किससे decorated था? Bright buntings, bright lights. Shiny colored balls थी उस पे. And twinkling lights. But something was missing. But उस पे कुछ तो missing था. There was no gift from our parents under the tree. वहाँ पे कोई भी gift नहीं था हमारे parents की तरफ से हमारे लिए. Or from Santa. Santa ने भी नहीं दिया. For that matter, mystified we approached the tree slowly. अब हम धीरे धीरे slowly कुछ सोचते मतलब आराम से जिससे किसी को पता चला हम कहाँ पे गए ट्री के पास गए. But under the tree we saw two small white envelopes with our names on them. फिर हमें ट्री के नीचे 2 small envelopes मिले white कलर के, उन पे हमारा नेम था. We got down on our hands and knees. हम अपने हैंड और नीज पर बैठ गए नीचे. And crawled around the tree. और ट्री के तरफ क्रॉल करते रहे. Hoping to find a hidden gift we had missed. सोचते रहे कि यहाँ पे शायद कोई हिडन गिफ्ट भी होगा जो हमें नहीं मिला. Nothing, only the white envelopes. But कुछ नहीं था, खाली white envelopes थे. Disappointed, we peeled open the envelopes. हमने disappoint होते हुए हमें गिफ्ट्स तो मिले नहीं, envelopes को peel कर दिया and open करा. To our surprise, each envelope held a small computer printed invitation. हमारे सरप्राइज के लिए उसमें क्या था? कंप्यूटर प्रिंटेड इनविटेशन था. It said, उसमें क्या था? This invitation entitles you to travel Antarctica. वो अंटार्कटिका बुलाता है invitation from 17 to 28 February 2005. 17 से 28 February 2005 तक उस invitation ने उनको वहाँ बुलाया. From 17 to 28 February 2005 तक के लिए invitation आया है. Flight कौन सी है? Santiago to Punta Arenas, Chile. And ship Punta Arenas to then Punta Arenas से फिर उनकी ship है Antarctica के लिए. Now next page. Are we hallucinating? क्या हम कुछ सपना देख रहे हैं? We thought Antarctica. Are you kidding us? क्या तुम मजाक कर रहे हो? Our parents were now grinning widely at us. Parents हमारी तरफ देख रहे होंगे grinning widely at us. They assured us this was no trick. क्या ये कोई की ट्रिक तो नहीं है? उन्होंने assure करा they and we had been invited to Antarctica as part of expedition led by Chilean Navy. जो Chilean Navy ने expedition वो करा है उसके हमें पार्ट के लिए बुलाया है. The purpose of the expedition was to set up the first mobile phone based on the Antarctican mainland. उसका पर्पस क्या था? ये पर्पस था जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन बेस्ड था, वो अंटार्कटिका के मेनलैंड में एक्सपीडिशन हो रहा था, वो सेटअप हो रहा था. So far we had only read a little about Antarctica in geography textbook. अभी हमने थोड़ा सा ही अपनी geography textbook में अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा है. It was listed at the 7th continent of the world, largely unexplored, covered with by ice and snow fall years around. पता है वहाँ पे क्या होता था? It was listed in the geography book कि वो 7th continent of the world में largely unexplored रहता है वो, क्योंकि वो
आइस से कवर्ड रहता है पूरे साल के लिए. It released gigantic icebergs, had cocky-like little penguins that looked like cute butlers in their black and white plumage. वहाँ पे क्या रहता है, एक gigantic icebergs होते हैं, कॉकी लिटिल पेंगुइन्स होते हैं जो कैसे दिखते हैं, क्यूट बटलर्स की तरह, ब्लैक और वाइट प्लमेज में. इट्स एंशिएंट नेम वाज टेरा इनकॉग्निटो, द अननोन लैंड. उसको पहले क्या कहते थे एंटार्क्टिका को टेरा इनकॉग्निटो, द अननोन लैंड मीन्स द नोन लैंड. नाउ वी वर एक्चुअली गोइंग इनटू दिस अननोन फ्रोजन एंड फेरावे प्लेस. क्या आप सच में जा रहे हैं ऐसे फ्रोजन प्लेस पे, अननोन पे? Our chest puffed up. हमने गहरी सांसें ली. And we began to think of ourselves as great explorer. और हम अपने आप को एक great explorer के बारे में तरह सोचने लगे. Ready to conquer stormy seas and discover the untold secret of our planet. और हम ऐसे stormy seas में जाएंगे और untold secrets अपने planet के बारे में बताएंगे. हमें पता चलेगा. We could not wait to surf the web for more information. अब हम वेट नहीं कर सकते वेब सर्च करने के लिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए. We found that we would traverse the world's most violent seas and skim past yet unnamed island to reach the mysterious continent of Antarctica. अब हमें मिस्टीरियस सीज से, वायलेंट सीज जो डरावनी सीज होती है, उनको पास करते हुए एक अननेम्ड आइलैंड तक को भी पास पे जाना होगा, मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका के. आज सेलिंग रूट वुड टेक अस फ्रॉम द सिटी ऑफ पुंटा एरेना इन चाइल. अब हमारा क्या होगा, जो सेलिंग रूट होगा वो हमें शिप्स में कहाँ से बैठना है, पुंटा एरेना के चाइल से. इन चाइल जो है, थ्रू द स्टेट ऑफ मैंगेलन, डाउन द बीगल चैनल, पास्ट वुलस्टन आइलैंड एंड केप हॉर्न, देन अक्रॉस द ड्रेक पैसेज एंड टू अंटार्कटिका. फिर उसमें हमें क्या पास करना है, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मैंगेलन, वहाँ से स्ट्रेट मैंगेलन के लिए, स्ट्रेट ऑफ मैंगेलन से डाउन द बीगल चैनल के नीचे से पास्ट वुलस्टन आइलैंड, हमें वुलस्टन आइलैंड को पास करना है, केप हॉर्न को भी. देन अक्रॉस द ड्रेक पैसेज के अक्रॉस एंड ऑन टू अंटार्कटिका. नाउ लेट्स रीड द सेक्शन 2. Having taken a flight to Punta Arena, they set for their destination and in an iceberg called Rompelio Almira Viltoro. तो पुंटा एरेना तक वो पहुंच गए. फिर उन्होंने डिसाइड इन सेल, वो किस में बैठ जाते हैं, एक सेल में, शिप में बैठ जाते हैं. इन एन आइसब्रेकर कॉल्ड, आइसब्रेकर उसको क्या कहते हैं, उस शिप का क्या नाम था, रोम्पेलियो अल्मिरांते वेल तोरो. इन दिस expert they have already called the Strait of Magellan and are describing their adventure in crossing the fearsome Drake Passage, which had earned a reputation for being the most turbulent sea. वो वहाँ से निकलते हुए कहाँ जाते हैं, fearsome Drake Passage पे जाते हैं, जो उसकी क्या रेपुटेशन, वो सबसे ज़्यादा वॉयलेंट सी है, टर्बुलेंट, जहाँ सबसे ज़्यादा डरावनी बहाव आते हैं, वो सबसे ज़्यादा डरावनी सी है प्लैनेट की, वो वहाँ जाते हैं. वी कुड फील द टेंशन ऑन द शिप, उनको टेंशन होने लगी शिप पे. एवरीवन लुक्ड सीरियस, देयर फेसेस टॉट विद एंग्जाइटी. सब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, उनके फेसेस टेंशन में आ गए, उन्हें टेंशन, एंग्जाइटी, पैनिक होने लगा उन्हें बहुत ज़्यादा. इट वॉज आवर थर्ड नाइट ऑन बोर्ड एंड इट वॉज टाइम टू एंटर द ड्रेक पैसेज. वो हमारी थर्ड नाइट थी शिप पे और हमारा क्या था, अब टाइम था ड्रेक पैसेज में जाने का. द पैसेज इज द प्रिंसिपल रीजन वाई द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका वॉज नॉट डिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. पैसेज ही एक मेन रीज़न था जो जिससे अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट था वो डिस्कवर ही नहीं हो पाया था. सी फॉरिंग एक्सप्लोरर्स एंड करेजियस captains just could not get across it. जिनको एक्सपीरियंस था ना, वो भी कैप्टन्स वहाँ नहीं जा पाते थे. Nor pierce its mantle of ice and snow and clouds.
उन्हें आइस और क्राउड से भी ऑफ मिस्ट से भी डर लगता था. नो नॉट पियर्स. ओकेजनली वन कैन एनकाउंटर द ड्रेक लेक. तो एक ही ड्रेक लेक पे एनकाउंटर कर सकता विद लो विंड्स एंड काम वाटर. जब उसकी विंड स्लो होती है सिर्फ जब ही जा सकते थे, जो विंड स्लो होती है काम होती है. बट वन वॉज मोर लाइकली टू गेट द फियरसम ड्रेक शेक. पर उनको ड्रेक शेक की बहुत ज़्यादा मतलब डर नहीं होना चाहिए. अनलीशिंग ऑल द फरी ऑफ द एलिमेंट्स. उसको पार करते हुए यू हैव वाटर सो सेवेज एंड treacherous that even the most experienced sailors fear to across. वहाँ बहुत डरावनी चीज़ें होती थी, कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस सेलर नहीं जा सकता था उसे क्रॉस करने के लिए. Even with modern technological advances in the seafaring versus merciless storms in the Drake can leave ships stormed. जो इतने डरावनी चीज़ें होती थी वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सीफेयरिंग मर्साइल्स एंड स्टॉर्म्स इन द ब्रेक कैन लीव शिप स्टेरिल. उससे शिप काट जाती थी, स्ट्रैंडेड हो जाती थी. इट सीम दैट वी वो हेडिंग फॉर सम ऑसम कंडीशन. ऐसे लगता है हम कुछ ऑसम कंडीशंस में हम जाने वाले हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस. अब हम एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं. द वाटर ऑफ अटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन चर्न अराउंड एंटार्क्टिका इन अ विंडी फरी. जो वाटर है अटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन का वो चर्न हो जाता है, मतलब मिल जाता है कहाँ पे, एंटार्क्टिका की ना विंडी फरी में. द बिगनिंग ऑफ द ब्रेक पैसेज इटसेल्फ गेव अस प्रीव्यू ऑफ हाउ टेरिबली फियर्स द सीज वुड बी ऑल अलोंग. जो ड्रेक पैसेज था इटसेल्फ उसने गेव अस द प्रीव्यू, उसने हमें पहला ही व्यू दे दिया कि आगे जाके क्या ट्रेंड हमारे साथ डरावनी चीज़ें होंगी. बाय बेड टाइम द वेदर हैड डिटोरेटेड शार्पली. जो जैसे जैसे शाम होती है मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर हो जाता है. द शिप वॉज स्लर्चिंग अलार्मिंगली. शिप धीरे धीरे जा रही थी. वेव्स 32 to 50 feet हाई वर ब्रेकिंग ओवर इट बो एट स्टर्न. जो वेव्स थी वो कितने ऊपर हाई तक जा रही थी, 32 से 50 फीट्स तक. द ड्रेक पैसेज वॉज rocking and rolling, and how our ship bobbed up and down like a cork in the heaving raging water. ऐसे अब हमारा rocking and rolling हमारा ship होता हुआ कहाँ जाता है, our ship bobbed up and down like a cork in the heaving raging water. raging waters में जाता हुआ हमारा ship है. Our previous brief encounter, हमारा जो पहले का brief था वो with the Drake had no prepared us for the shaky shakes. जो हमारा पहले का डर था उससे हमारा ड्रेक had no, हमें उसने इतना प्रिपेयर नहीं करा था इन shaky shakes के लिए. We had imagined at worst, हमने बहुत डरावना सोचा. An experience close to the most hair raising rides in Disneyland. वो एक जो most hair raising मतलब कि बहुत जो डरावनी राइड्स होती हैं जिसमें हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं, ऐसे डिज्नीलैंड की राइड्स की तरह है. Not one of us had expected the full wind of 90 knots that hit us around 2 o'clock in the morning. जो 90 knots की जो वेव थी हमें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रात के 2 बजे हमें लगेगी वो सुबह के. With 30 meters high waves crashing into it. 30 meters high waves जो है हमारी शिप से टकरा रही है. The ship rocked so wildly that no one of us felt inclined to make it for breakfast later than morning. इतनी डरावनी चीज़ें हुई थी हमारे साथ वहाँ पे, इतनी मतलब वाइल्डली, मतलब कि इतनी गंदी तरह से वो जो शिप थी हमारी हिलती रही पूरी रात शिप अपनी वेव से. तो क्या होता उस दिन सुबह किसी ने ब्रेकफास्ट करने की सोची नहीं डर की वजह से. We stayed in our cabins and clung to our berths. हम अपने cabins और clumps में रहे, berths में अपने. The vicious sea and the screaming winds all converged to put us through the Drake shake. जो vicious seas थी, जो डरावनी seas थी, screaming winds मतलब चिल्लाती हुई winds आ रही है, converged to put through the Drake shake. converge हो गई वो Drake shake करने के लिए. We were afraid to let go of the side rails for fear of being pushed आउट ऑन टू द फ्लोर. हम डर रहे थे, वो जो साइड के वेल्स थी ना उनके पास जाने से भी डर रहे थे कहीं हम फ्लोर पे ना गिर जाए. वी हैड टेकन
सी सिकनेस पिल्स, हमने जो सी सिकनेस पिल्स होती है ना, जो हमें डरा लगता है तो हम पिल्स ले लेते हैं सी से, वो भी लेनी. बट देयर वॉज नो टाइम टू इवन थिंक ऑफ सी सिकनेस. वी हैड टेकन सिकनेस, पर उनके बारे में सोचने का किसी पर टाइम ही नहीं था. एट सम पॉइंट वी गेव अप ट्राइंग टू स्लीप एंड जस्ट कंसंट्रेटेड ऑन कीपिंग आवरसेल्फ ऑन द बर्थ. फिर हमने गिव अप कर दिया, मतलब सोने की कोशिश कर रहे थे जब, फिर हमने छोड़ दिया कि देखते हैं अब हम कंसंट्रेट करते हैं किस पे, अपने बर्थ्स पे. बाय द टाइम वी हैड क्रॉस द ड्रेक ओवर द नेक्स्ट 2 days. फिर हमने नेक्स्ट 2 days में हमने ड्रेक को क्रॉस कर दिया. We ended up with skin burns and strained muscles from sliding from one end to the one end of the bird to the other. We have loved to wait. We ended up with sick. जब हमने ड्रेक को क्रॉस कर दिया तो हमारे पे क्या हो गया था, हमारे पे स्किन बर्न्स हो गए थे, स्टेन्ड पड़ गए थे, मसल स्टेन होते हैं ना, नील पड़ जाना फ्रॉम, किस वजह से, जब हम एक स्लाइड से दूसरे कोने में अपने बर्थ के गिर रहे थे बार बार शेक्स की वजह से. वी वुड हैव लव टू टेक ड्रामेटिकल पिक्चर ऑफ शिप्स बो crashing through mountain waves, but after the first few this was out of the question. हमें उसकी पिक्चर लेनी चाहिए जब वो क्रैशिंग हो रही थी थ्रू माउंटेन्स, मतलब वो माउंटेन्स के बीच में से जा रहे थे. बट आफ्टर द फर्स्ट फ्यू दिस वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन. बट हमारा ये तो दिमाग से ही निकल गया. जस्ट गेटिंग फ्रॉम आवर बंक्स टू द बाथरूम वॉज रिस्की बिजनेस. जब हम अपने बंक से अपने बाथरूम में जाते थे वो भी बहुत डरावनी चीज़ थी. डैड वॉज थ्रोन क्लियर अक्रॉस द कैबिन वंस एंड लकी नॉट टू हैव क्रैक्ड ओपन हिज हेड. डैड तो वॉज थ्रोन क्लियर अक्रॉस, वो तो नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी. Luckily, we were by ourselves in the cabin at the time, so no one was crawling like insects to the toilet. हम ही थे वो जो क्रॉल, तो इसलिए कोई और नहीं था उस टाइम पे क्रॉल करता हुआ इंसेक्ट्स की तरह टॉयलेट जाने वाला. The crossing of the drake was nail biting. जो मतलब वो जो क्रॉसिंग था नेल ड्रेक का, वो नेल बाइटिंग मतलब एकदम डरावना था. हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, हेयर रेजिंग मतलब डरावना एकदम, बाल मतलब अपनी रूम खड़े करने वाला. हाउलिंग विंड्स, जीरो विजिबिलिटी, मिस्ट एंड फॉग, कुछ नहीं दिख रहा था, जीरो विजिबिलिटी थी फॉग की. नो सन एंड इनॉमरस वेव्स टॉसिंग एंड स्पाइनिंग द शीप, मतलब बहुत इनॉमरस वेव्स आ रही थी तो शीप से टकराती हुई. अराउंड लाइक क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन, जैसे क्लोथ्स टकराते हैं ना एक वॉशिंग मशीन में, ऐसे से. इट हैड टेकन अस टू फुल डेज एंड 2 full nights. ये मतलब 2 full डे और 2 full नाइट तक ऐसा हुआ टू गेट अक्रॉस द ड्रेक को पार करने में हमें 2 दिन और 2 रातें लगी. During our 5th night on board, we felt the tossing of the ship subside and sank thankfully a long waited sleep of exhaustion. फिर हमें एक thankfully एक sleep आई अपने exhaustion की. We woke up in the morning of the next day. फिर हम उठते अगले दिन मॉर्निंग में to find that we had crossed the Drake and were officially in Antarctica. अब हम ऑफिशियली कहाँ थे, अंटार्कटिका में एंटर हो गए थे. Small icebergs floated all around the ship like a silent curious welcome party. अब हमारे आइसबर्ग्स कहाँ टकरा रही थी, हमारी शीप से साइलेंटली टकरा रही थी जैसे हमारी कोई वेलकम पार्टी हो रही हो. While one large tabular berg lay easily to the right side. एक large tabular berg थी, कहाँ थी, right side में. We dug into a hearty breakfast. हमने एक ब्रेकफास्ट करा. Grateful to be alive. क्या सोचते हो कि अब हम जिंदा है. To be able to stand straight, अब हम सीधे खड़े हो सकते हैं without being knocked down, मतलब नीचे गिरते हुए बिना हम सीधे खड़े हो सकते हैं. And during such a stormy crossing was an experience to remember. ये भी एक स्टॉर्मी क्रॉसिंग जो था एक्सपीरियंस था याद रखने के लिए. The weather had eased and the rolling of the sheep was now almost pleasant. जो शीप चल रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही थी. Like a comfortable rocking chair, जैसे comfortable rocking chair होती है ना, उसकी तरह. Our first sighting of land was Smith Island, but we did not stop there. एक हमें जो लैंड आइलैंड दिखा वो कौन सा था, स्मिथ आइलैंड था, बट हम वहाँ नहीं रुके. We crossed the Jorlet Strait, a picture postcard waterway heading for paradise beyond the Antarctic Peninsula.
फिर हम चलते हैं जेरेलिस स्ट्रेट से पिक्चर पोस्ट कार्ड वाटरवे थे हेडिंग फॉर पैराडाइज, जो पैराडाइज में बियॉन्ड द एंटार्क्टिका पेनिनसुला की जा रही थी। द नॉर्थवर्ड फिंगर ऑफ द पोलर कॉन्टिनेंट, क्या है वो? नॉर्थवर्ड फिंगर है पोलर कॉन्टिनेंट की। द मॉर्निंग सन वॉज स्टिल सर्कल्ड इन पेल मिस्ट, मॉर्निंग सर्कल कैसा था? वो स्टिल इंसर्कल्ड था इन पेल मिस्ट, मतलब वहाँ फॉग था। इट वॉज परसेप्टिबली कोल्डर बोथ अबव, वहाँ पे भी ठंड थी। एंड हिलो डेक, बहुत ज़्यादा ठंड थी बिलो डेक। अ लोन एल्बेट्रॉस who had taken a shine to us and led us on through the worst of the break vessel. There was an albatross who had taken us to shine to us and led us on through a worst of break vessel. से हमें निकाल गया. Now welcomed us to Antarctic. हमें Antarctic में welcome करा. We dug our hands into the kangaroo pouch. हमने कंगारू के पाउच में अपने hands दिए. ऑफ आर विंचटर्स, जैसे कंगारू पाउच में हाथ में हैंड्स दे लेता है, ऐसे लगा हमने विंचटर्स में अपने हैंड्स दिए। एंड साइटेड विश टाइम वुड रन फास्ट, हम सोच रहे थे कि टाइम जल्दी से जल्दी चले। वाई विद एक्साइटमेंट गूज बम्पिंग आर स्किन, जो हमारा एक्साइटमेंट गूज बम्प्स हो रहे थे उससे हम सोच रहे थे टाइम जल्दी से जल्दी चले। वी वेटेड फॉर आर फर्स्ट लैंडफॉल ऑन द स्टेबल्ड कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, हम वेट करते रहे कि हमारा फर्स्ट लैंडफॉल हम कब लैंड पे उतरे अपने फेबल्ड कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका के। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट गिवन बाय सुरभि थॉमस एंड ऋषि थॉमस। So thank you for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.